Hello class, good morning to all, and today we'll start the physical chemistry first chapter, that means the solid state. Clear? And the organic chemistry is completed now, and the first chapter of your physical chemistry is that the solid state. Clear? And before starting solid state, we can also define that we'll give a short introduction about the state of matter. Clear? That means state of matter. We know that very well. We have the three state of matter. The one is the solid, second is called the liquid, and third is called the gaseous state. Clear? And see that these three states, you have another two states also called the supercooled liquid state, or the plasma state. Clear? That means total you have now the five states. But here we'll only discuss the solid state, this liquid state, and the gaseous state we completed in the 11th class. This is the physics and this is in chemistry. Clear? And little bit liquid properties we'll discuss in second chapter also. So see that what is solid, what is liquid, and what is gases. You see that you have the two type of forces. On the behalf of forces, we can define our solid, liquid, or gases. Two type of forces, that means the one you have the attraction forces, and second force you have the repulsion forces. Clear? So what is attraction forces? That means when the particles of a molecules or compounds is attract together, attracts towards each other, so it is called the attraction forces. They comes closer by this attraction forces. Clear? And the repulsion forces, that means when the atoms are repelled to each other, this is called a repulsion forces. It's clear? So see that in the case of solid, you have attraction force is very high as compared to repulsion forces. ठीक है? अगर आपको कहां पर क्या मिलेगा, अगर किसी एटम्स में या किसी मॉलिक्यूल्स में you see that attraction forces is very high as compared to repulsion forces, so you can see that this state is categorized as a solid state. Clear? This is called solid state. Clear? That means this you have the condition of solid state. And see that the next you have when your attraction forces it become equal to repulsion forces. Okay? That means the attraction forces is become equal to repulsion forces. So you can see that this is called liquid state. This is called the liquid state. And then and the last one, when your repulsion forces is become higher as compared to attraction forces, so this state is called the gaseous state. Clear? That means on the behalf of the force applied in between the atoms or the particles of a compound, we can define our matters in three states. Then first, solid, liquid, and the gases. In the case solid, you are saying that the attraction forces is very high, and we know that very well that in the case of solid, there are very less space in between the atoms and the particles of this solid state. Why it is happening? Because we know that they are applying a strong attractive forces. ठीक है? जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेगा पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के आएंगे उतने क्लोज आएंगे, एंड दे हैव वेरी लेस स्पेस इन बिटवीन देम. क्लियर? दैट मीन अगर लेस स्पेस आपके पास है तो यू कैन से दैट द मूवमेंट इन द केस ऑफ सॉलिड इज वेरी लेसर या नेग्लिजिबल. ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट. ठीक है? मूवमेंट का मीन्स होता है द फ्लूइडिसिटी. ठीक है? अगर आपके पास बहने का टेंडेंसी है या नहीं है, फ्लो करने की टेंडेंसी, एंड वी नो दैट सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं. ठीक है? एंड व्हाई? बिकॉज दे हैव द वेरी लेसर स्पेस इन बिटवीन देम. और लेसर स्पेस का कंसेप्ट कहां से आएगा? जब आपके पास हायर अट्रैक्शन फोर्सेस होगा. क्लियर? इन द केस ऑफ लिक्विड, यू सी दैट लिक्विड इज द हैव द टेंडेंसी टू फ्लो. ठीक है? व्हाई? बिकॉज इनके पास क्या है? अट्रैक्शन फोर्सेस कम है. Clear? And in case of gases, we can say that the gases is flow
in the manner of very high as compared to liquid or solid. Why? Because the gases have very high repulsion forces as compared to attraction forces. ठीक है, जितना ज्यादा आप रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो आपके पास उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लो करने का टेंडेंसी होगा. इट इज क्लियर? नाउ इट्स क्लियर. सो द सेकेंड थिंग्स इज दैट this is the general introduction about the solid. ठीक है, how we recognize this one is solid, this one is gas, and this one is liquid. Clear? So now we have some phenomena, yeah, we have some terminology for respect to solid, liquid, and gases. ठीक है, तो first tendency you can say that you have the compressibility. Compressibility you have. ठीक है, compressibility means is that when you apply a force to this different state of matter, that means when you are applying the force on the solid, this is very less compressible or there is no compressibility या non compressible. ठीक है, क्या होता है solid? You have the solid, you can say that solid have no compressibility. ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? सेम पॉइंट प्रीवियस वाला कि उनके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के या एटम्स हैं सॉलिड के, उनके बिटवीन में क्या है, बहुत लेस स्पेस है. बहुत लेस स्पेस है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, बहुत लेस होगी. इन द केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड आर कंप्रेसिबल बट नॉट हाईली कंप्रेसिबल. ठीक है, वी कैन कंप्रेस लिक्विड इन शॉर्ट मैनर. ठीक है, एंड इन द केस ऑफ गैसेस यू विल सी दैट द गैसेस आर वेरी हाई कंप्रेसिबल. ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल. हाईली कंप्रेसिबल दैट मीन द डिक्रीजमेंट इन द वॉल्यूम. ठीक है, रिमेंबर दैट जब भी आप किसी को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने में क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डिक्रीजेस. वॉल्यूम इज डिक्रीजेस. आपके वॉल्यूम में क्या आएगा, बहुत कमी आने वाली है. ठीक है, सी देखो सॉलिड और लिक्विड केस में तो हम जज नहीं कर पाते, बट सी दैट व्हाट हैपन इन द केस ऑफ गैसेस. दिस इज अ कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड या फुली फिल्ड बाय सम गैसेस. ठीक है, कोई गैस आपके पास है तो गैस क्या करेगा, आपका इस कंटेनर को फिल कर देगा. क्यों फिल करेगा? सपोज यू हैव द टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. सपोज आपके पास O2 भी है और आपके पास N2 भी है. ठीक है, डाल्टन्स लॉ डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, हम क्या करते हैं, सपोज आपके पास एक कंडीशन है गैसेस का. ठीक है, गैसेस कंडीशन इज दैट सपोज यू हैव टिल दिस यू हैव सम सॉलिड्स हियर. ठीक है, समथिंग यू हैव. ठीक है, यहां तक आपके पास है कुछ. ठीक है, आपको गैस फिल करनी है कोई, तो आपका जो गैस का अमाउंट होगा, जो गैस का वॉल्यूम होगा, वो रेस्ट पार्ट होगा. वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, रेस्ट पार्ट होगा. जितने पार्ट में आपके पास ये हैं सॉलिड हैं. ठीक है, सपोज दीज आर द सॉलिड्स. ठीक है, एंड कंटेनर इज फिल्ड टिल हाफ बाय सॉलिड्स एंड यू वांट टू फिल दिस हाफ या यू वांट टू फिल दिस कंटेनर बाय द गैसेस. सो रिमेंबर दैट जो गैस आपके फिल होगा वो गैस आपका इस सॉलिड के ऊपर को फिल होगा. ऐसा नहीं कि गैस यहां भी आ जाएगा, नहीं. यहां पर सॉलिड्स है एंड यहां पर क्या होगा, उनके बीच में जो स्पेस होगा बहुत कम होगा या देयर इज नो स्पेस फॉर द अपकमिंग गैसेस. ठीक है, जो इनकमिंग गैस है उसके लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं है. ठीक है, तो हमेशा याद रखना दिस पार्ट इज ऑलरेडी फिल्ड. क्लियर? सो जो गैस फिल्ड होगा बेटा वो आपका यहां फिल्ड होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पूरे कंटेनर को गैस से फिल कर दें. ठीक है, नाउ सी द सेकंड कंडीशन. This is the second condition. Second condition is that there is a container and you are filling the gas, a small amount of gas. Yeah, you have the same amount of gas in the container A and B. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ गैस आपके पास है. जितनी गैस आपने ए में ली है उतना ही गैस आप बी में ले रहे हैं. ठीक है, बट डिफरेंस इज दैट ए में आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो इस पार्ट में है. ठीक है, यानी कि ये जो रेस्ट पार्ट है यहां पर कोई गैस का वॉल्यूम नहीं मिलेगा. ठीक है, बट इन द केस ऑफ कंटेनर बी एंड दीज आर द सेम कंटेनर. ठीक है, सेम कंटेनर एंड द सेम
amount of gas you have. Clear? So the volume of gas is now become equal to volume of container. ठीक है? Now this volume of gas is become equal to volume of gas container. देखो सॉलिड में क्या होगा, सेम होता है, लिक्विड में सेम होता है, बट गैसेस में क्या होता है, वॉल्यूम आपका डिपेंड करता है टू कैप्ट इन इट. ठीक है, जहां पर आप गैस को कैप्ट कर रहे हैं, जहां पर आप गैस रख रहे हैं, उसी कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा गैस का वॉल्यूम. इंस्टेड यू हैव ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस इन देयर. ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ गैस भी है, तब भी जो आपका वॉल्यूम होगा गैसेस का वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ठीक है, हल्की सी गैस आपके पास है, आप इस रूम में छोड़ दे रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रूम. क्लियर? सो एंड सपोज दैट यू हैव टू डिफरेंट गैसेस N2 प्लस O2. ठीक है, मैं कहूंगी N2 का वॉल्यूम कितना है, O2 का वॉल्यूम कितना है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर हमारे पास हाफ N2 होगा हाफ O2 होगा. नहीं, O2 का वॉल्यूम भी पूरा कंटेनर के बराबर होगा और N2 का वॉल्यूम भी क्या होगा, होल कंटेनर के बराबर होगा. ठीक है, किसने बताया था, डाल्टन साहब ने. ठीक है, डाल्टन लॉ ये पढ़ा था हमने 11th क्लास में. ठीक है, चलिए वॉल्यूम इज डिक्रीजेस. हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो वॉल्यूम होगा ऑन कंप्रेसिंग वो कम हो जाएगा. ठीक है, देखिए सॉलिड के केस में इट्स नॉट इजी टू डिफाइन डिक्रीजमेंट इन वॉल्यूम बिकॉज देयर इज वेरी लेस स्पेस इन बिटवीन देम. एंड इन द केस ऑफ लिक्विड देयर इज ऑल्सो वेरी लेस स्पेस, तो वहां पे डिफाइन नहीं हो रहा. बट इन द केस ऑफ गैसेस यू सी दैट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैसेस in your container and you are applying a piston on it. You are applying a piston on it and you are compressing your gas. अभी तक गैस का वॉल्यूम यहां तक था, बट आफ्टर कंप्रेसिंग you see that the volume of gas is become equal to in this manner. Clear? That means there is decreasement in volume. ठीक है, जब भी आप किसी स्टेट को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसकी वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट होता है. क्लियर? क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एटम्स के पार्टिकल्स हैं, या सॉरी जो स्टेट के पार्टिकल्स हैं, किसी मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, अब आपस में नजदीक आना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दे आर कमिंग टू क्लोजर ईच अदर. ठीक है, अगर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा. क्लियर? और डिक्रीजमेंट कब आता है, व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन इट. क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फिनोमेना कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी. Clear? So see that after compressibility you can say that your solid is mainly or broadly categorized into two states या two types. ठीक है, solid is broadly classified into two. First is called crystalline or second is called amorphous. ठीक है, there's two type of solid. First is called the crystalline, second is called amorphous. So what is the mean of this crystalline and what is the amorphous solid? So see that the crystalline is totally defined the meaning of crystalline solid. You are seeing that there is a word called line, ठीक है, और there is a word called amorphous. Amorphous means is that not well defined. ठीक है, you can say that not defined. Not defined. ठीक है, amorphous का मीन्स क्या होता है, इट्स अ ग्रीक वर्ड एंड द मीनिंग इज दैट नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड का मीन्स क्या होगा, कि वो सॉलिड्स जो क्या हो रहे हैं, डिफाइंड नहीं है. ठीक है, नॉन डिफाइंड है. ठीक है, यहां पे देखिए क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन का मीन्स लाइन, मतलब लाइन का मीन्स क्या होगा, जो सॉलिड्स क्या होंगे, एक बिल्कुल लाइन में होंगे, एक रेगुलर अरेंजमेंट जहां पर होगा, उसे बोलेंगे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, यू कैन सी दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द रेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है, आपने कहा क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन. ठीक है, टेट्राहेड्रल आपके पास है, टेट्राहेड्रॉन आपके पास है, ऑक्टाहेड्रल आपके पास है. दे हैव द वेल अरेंज मैनर. ठीक है, बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सॉलिड्स. सो वी कैन सी दैट दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, मेटल देखिए, मेटल इज सी दैट मेटल के पास क्या होता है, एक मेटल का बहुत अच्छा पीस होगा आपके पास. ठीक है, बहुत अच्छा पीस का मीन्स होगा कि दे हैव ए वेल डिफाइंड शेप.
ठीक है, शेप का मीन्स क्या होगा कि जो एटम्स के अंदर अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है, और कैसा होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होगा आपके पास, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट होगा. बट इन एमोर्फस सॉलिड्स यू कैन से दैट दिस इज नॉट रेगुलर, ठीक है, जो उनका एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर नहीं होगा, वो कैसा होगा, इररेगुलर होगा, नॉट डिफाइंड होगा आपके पास, ठीक है. सी दैट मेटल और एमोर्फस में आप एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ठीक है, देखिए कोई भी चीज अगर डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, कोई भी सॉलिड अगर डिस्टॉर्टेड है, उनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड, ठीक है. सो हियर यू कैन से दैट यू हैव द वेरी so much example called the glass you have, ठीक है, rubber you have, ठीक है, rubber band, ठीक है, rubber you see that, and when you cut the rubber you see that there are some holes, ठीक है, उनके जो बीच में क्या होगा, बहुत सारा होल्स होता है, ठीक है, वो होल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स था वो प्रॉपर नहीं हो पाया, उनके बीच में गैपिंग आ गया, उनके बीच में क्या है, गैपिंग आना, ठीक है, उसे बोलेंगे एमोर्फस. सपोज यू आर स्टैंडिंग इन योर स्कूल्स फॉर द प्रेयर, ठीक है, फॉर प्रेयर, एंड यू आर सी दैट योर लाइन्स इज वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी अरेंज, सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन, ठीक है. अगर आप उस लाइन में अरेंज नहीं है, डिस्टॉर्टेड है, या फिर नॉट डिफाइंड है, कोई बच्चा यहां खड़ा है, कोई बच्चा वहां खड़ा है, दिस इज कॉल्ड द एमोर्फस, ठीक है. देयर इज नो अलाइनमेंट, देयर इज नो अरेंजमेंट इन बिटवीन द एटम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स, ठीक है. रबर काटा आपने, अंदर देखा कुछ होल्स मिले आपको, ठीक है, एंड द एयर कैप्ट इनसाइड दिस होल्स, तो वो क्या शो कर रहा है, एमोर्फस सॉलिड शो कर रहा है, ठीक है. क्रिस्टलाइन शो देखिए, क्रिस्टलाइन देखिए आप क्या होता है, सपोज यू हैव द सुगर एटम, या सुगर यू हैव, you see that when you cut your sugars, so you see that you will get a clean cleavage, ठीक है, that means sharp cleavage you get, ठीक है. जैसे आपके पास सॉलिड था, आपने कट किया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, प्लेन और स्मूथ सरफेस मिलने वाला है आफ्टर कटिंग दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स, ठीक है. जैसे सॉलिड कट किया, एक प्लेन और स्मूथ सरफेस आपको मिलेगा, बट इन द केस ऑफ एमोर्फस यू विल नॉट गेट ए स्मूथ सरफेस, यू विल गेट ए रफली सरफेस, ठीक है. रफली सरफेस क्यों बोल रहे हैं, मिलेगा तो रबर काटने में भी स्मूथ आपको, वाई, बट होगा क्या, जो आपका सरफेस होगा उस सरफेस में स्पेसेस होंगे आपके पास. अगर स्पेस हो रहे हैं तो एमोर्फस, यहां देखिए शुगर को काटिए बिल्कुल बीच से बढ़िया तरीके से, किसी हम आयरन रॉड को काटते हैं, ठीक है, सपोज आयरन रॉड काट रहे हैं, तो देयर इज नो स्पेस, कहां पे, जब आप कट जाएगा उसके बाद उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, बट यहां पर आपको स्पेस मिलेगा, ठीक है. एंड द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट when, yeah, you can say that the physical properties of crystalline in all direction is very different, ठीक है. Write that the physical property is different in all direction. Different in all direction means that these properties are not same for all direction. But here properties are same for all direction. This is a very important point, that in the case of crystalline, the physical properties of crystalline solids are are very different in all direction, ठीक है. क्रिस्टलाइन में क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलने वाला है सभी डायरेक्शन में, बट इन द केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स यू सी दैट द प्रॉपर्टीज आर द सेम फॉर ऑल डायरेक्शन. क्लियर, इट्स क्लियर. सो सी दैट दिस एक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ठीक है. सो दिस प्रॉपर्टी यू कैन राइट दैट दिस इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक. क्लियर. एंड इंस्टेड ऑफ दिस इट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक. आइसोट्रॉपिक, क्लियर. दैट मीन आपने कहा कि जो सॉलिड्स होगा, लाइक यू हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखते हैं
कि डायरेक्शन चेंज होने पे क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी एंड इफ यू आर शोइंग द सेम प्रॉपर्टी फॉर ऑल डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, very important point is that the question comes sometime in this manner, what is anisotropic and the isotropic? Clear? Understand is that? So anisotropic is the property of crystalline solids and the isotropic is the property of amorphous solid. Okay? There is a large difference in between them. It is clear? So this is called the crystalline or amorphous solids. Now again this crystalline solids is further categorized or placed in different type of crystals, yeah, different types of solids in there. First of all, note down this point.